Hello everyone, welcome to Answer Kari. This video is the continuation of the number system series and we'll be continuing dealing with the questions of number systems, specifically divisibility for this particular video. Now, how many numbers are there between 1 and 200 which are divisible by 3 but not by 7? So in this case, it is asking that how many numbers are present between 1 and 200 which are divisible by 3 but this should not be divisible by 7. So the basic way to solve this question is first we'll find out all the numbers which are multiple of 3 or perhaps which are divisible by 3. All the numbers which are divisible by 3 and out of these we'll find out the quantity कि कितने ऐसे numbers हैं 1 से लेकर के 200 तक which are divisible by 3 and then from these we'll subtract all those numbers, the quantity of numbers which are not divisible by 7 but are divisible by 3. So for that we need to find out all the numbers which are divisible by 21 because 7 into 3 is equal to 21. So by doing this we'll be subtracting all the numbers which are divisible by 21 यानी कि जो 7 के भी जो 7 से भी divide होते हैं और 3 से भी from we'll be subtracting these numbers from those जो 3 से divide हो रहे हैं and hence we'll find out the answer to this question. Now the approach is first to find out कि कितने numbers 3 से divide हो रहे हैं. See 3 से लेकर के 30 तक अगर हम देखते हैं तो 10 numbers आते हैं right. तो ऐसे करके अगर हम चले तो 1 से लेकर के 180 तक the numbers that we'll have is 1 से लेकर 180 तक there'll be 60 numbers which will be divisible by 3 from 1 से अगर हम start करें till 180 तक right हमें 200 तक check करना है फिर जो ये बाकी के 20 numbers है अगर हम इनमें से check करें कि 3 से कितने divide होते हैं तो 3 6 is 18 यानी कि 6 ऐसे numbers है जो कि 20 तक यानी कि basically 200 तक जो divide होंगे 3 से so plus 6 which means that there are 66 numbers from 1 till 200 which are divisible by 3. Now out of these हमें वो subtract करने हैं जो कि 7 से divide हो रहे हैं इन 66 numbers में से. So for that we need to find out the numbers which are divisible by 21 from 1 till 200. Now obviously 21 into 10 will be 210 जो कि exceed हो जाएगा 200 से और plus 10 में exceed हो रहा है इसका ये मतलब है कि 21 into 9 यानी कि 189 is the last number so यानी कि there are total 9 such numbers which lie from 1 till 200 like which lie between 1 from 1 till 200 between 1 and 200 जो कि divisible है 7 से यानी कि 21 से जो divisible है अभी हम 7 पे फोकस कर रहे हैं इस केस में कि जो 3 से होते हो लेकिन 7 से ना होते हो तो what we'll do is we'll subtract 9 from 66 and hence we'll get an answer for this question which is 57. तो यानी कि 57 ऐसे numbers हैं जो कि divisible हैं between 1 and 200. Now also remember कि between कभी भी ना इन दोनों numbers को include नहीं करता. तो in this case तो obviously 7 और 3 divide नहीं कर रहे हैं 200 को. But there can be a question के but not by 20 या 10 ऐसा कुछ करके या 5. तो उस केस में फिर हमें 200 को इंक्लूड नहीं करना है. वी नीड टू रिमेंबर दिस. बिटवीन मीन्स के यहाँ पे 2 से लेकर के 199 तक. दिस इज वन थिंग टू रिमेंबर. एंड सेकेंड इज इस केस में ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जब वो ये बोले कि आर डिविजिबल बाय एक नंबर इधर दे दे और एक दूसरा नंबर दे दे और लिखिए बोथ बाय बोथ 9 and 5 या बाय बोथ 3 and 5 ऐसे करके. So there can be various types in this particular question as well. Now moving on to the 32nd question. So this question says, in a division sum, the divisor D is 10 times. तो times का मतलब होता है multiply के 10 गुना. For example, I said that I have 1 toffee and another person says that I have 10 toffees. So यानी कि उसके पास 10 times ज़्यादा toffees है. तो it means multiplication. The quotient Q and 5 times the remainder R. तो वो कह रहे हैं कि जो divisor है वो 10 times तो है quotient का. यानी कि अगर हम divisor को D मान ले suppose जो यहाँ पे given है
इट इज 10 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाइज द क्वोशंट, क्वोशंट को हमने यहाँ पे क्यों माना है, एंड इट इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर. सो डिवाइजर की बात हो रही है, इट इज ऑल्सो 5 टाइम्स द रिमाइंडर, ये भी इन्होंने दे रखा है. If r is 46, now they have given the value of r which is 46. तो डिवाइजर निकल जाएगा 46 into 5 which will be equal to 230. तो एक तो हमें डिवाइजर पता लग गया. Now since we know the divisor we can find out the quotient. तो since divisor is 230 तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं d की यहाँ पर, then 10 into q. So q will be equal to 230 divided by 10. This is very simple but still I am showing just for the sake. सो Q विल बी इक्वल टू 23, यानी कि जो क्वोशंट है वो 23 है एंड जो डिवाइजर है इट इज 230. तो डिविडेंड यहाँ पे पूछा है. नाउ सिंस वी नो द फॉर्मूला फॉर डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस द रिमाइंडर. सो डिविडेंड हमें निकालना है, तो डिवाइजर इज 230, quotient is 23, we just now find that out. Then r will be equal to 46. And so the answer for this will be 5336. After solving, we can find that out. So ये हो जाएगा. तो in these type of questions, basically कुछ ना कुछ करके हमें values पता लगानी होती है हर चीज़ की. For example, in the second or perhaps the first video, I explained it there as well. कि जैसे यहाँ पे 4 वैल्यूज है, राइट. एक डिविडेंड है, एक डिवाइजर है, क्वोशंट और एक रिमाइंडर है. तो इन चारों में से अगर हमें किन्हीं भी 3 की वैल्यूज पता लग जाती है तो किसी भी एक की फाइंड आउट करना इज वेरी इजी. उसमें सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है. नाउ यहाँ पे ऐसे लिख सकता है कि इट इज टाइम्स, या फिर ऐसा बोल सकता है कि डिविडेंड इज 2 मोर दैन द डिवाइजर, या ऐसा कुछ भी करके, मतलब सो 2 मोर के केस में मतलब कि वो +2 है. सो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. Now the 33rd question. The 33rd question says, a number when divided by 44, now there is a number which when we divide by 44 gives 432 as quotient and 0 as remainder. यानी कि वो completely जो वो number है वो divide हो रहा है 44 से, क्योंकि 0 यहाँ पर remainder आ रहा है, यानी कि वो एक multiple है 44 का. मल्टीपल भी कैसे, 44 into 432, हमें ये स्टेटमेंट पढ़कर ही पता लग रहा है. What will be the remainder when dividing the same number by 31? अब देखो अ नंबर यानी कि वो जो नंबर है वो डिविडेंट है. फिर डिवाइजर उन्होंने बता दिया कि डिवाइजर जो है वो 44 है क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 44 से. एंड 432 इज आवर क्वोशंट, तो यानी कि हमें इसके लिए पता लगी और ये 0 है. तो जो डिविडेंट है वो क्या हुआ, प्लस में 0 करने का तो कोई फायदा ही नहीं है. तो फिर डिवाइजर इंटू क्वोशंट विच इज 44 इंटू 432. तो वो सिंपली ये कह रहे हैं कि ये जो डिविडेंट है अगर इसको हम सेम नंबर, जो डिविडेंड है सेम नंबर है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 31 से बजाय कि 44 से, then what will be the remainder? So they're asking for the remainder in that case. So obviously we know the number, it is 44 into 432, which will be equal to 19008. तो ये जो मल्टीप्लाई करके ये नंबर आएगा. अब इसको हमें चेक करना है, 31 से इसको हमें डिवाइड करना है. And after this, whatever remainder that we'll get will be our answer. So after dividing this, we'll get the remainder 6. So 6 will be our answer for this question. Now in this case, जो हमने दोबारा जैसे डिवाइजर हमने चेंज करा, जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार जो डिवाइजर वो सेकंड डिवाइजर, जैसे पहला डिवाइजर दे गया, फिर कई बार जो वो सेकंड डिवाइजर देते हैं दैट इज अ मल्टीपल और दैट इज अ फैक्टर, सॉरी, that is a factor of this first divisor that we are given. लेकिन इस केस में 44 और 31, 31 is not a factor of 44, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं. तो इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा डायरेक्टली डिवाइड करके कि क्या केस बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन में हमें बोला होता कि हमें 10 से किसी नंबर को हमने डिवाइड करा है और फिर रिमाइंडर सो एंड सो आ रहा है, सपोज दिस इज अ रिमाइंडर, अगर हमने 10 से डिवाइड करा है किसी भी नंबर को, फिर अगर हम 10 के बजाय 2 डिवाइजर ले लेते हैं और उससे उस सेम नंबर को डिवाइड कर देते हैं, सपोज दैट सेम नंबर इज x, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा,
तो in that case we directly need to divide this particular remainder by 2. ये केस होएगा, बट ये तब बनता है जब जो ये 2 है ये फैक्टर है 10 का, राइट? बट इस केस में 44, इस केस में 31 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 44, या फिर 44 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 31. तो प्रीवियस वीडियो में जो 51st क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट दिस केस इटसेल्फ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62. When 335 is added to 5a7, now a here is a digit, right? ये कोई भी ऐसा digit है जो unknown है, जो हमें नहीं पता. The result is this. Now 8b2 is divisible by 3. ये इसकी एक प्रॉपर्टी बता रही है इस पर्टिकुलर नंबर की, कि जब हम इस नंबर में ये नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट ये आता है, और जो ये रिजल्ट आ रहा है ये डिविजिबल है 3 से, तो 3 से डिविजिबल होगा. इसका क्या मतलब है कि इसके जो डिजिट्स का सम है, टोटल सम, इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर वो 3 से डिवाइड होएगा. व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए? अब इसमें ए की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे हमें दो डिजिट अननोन है, एक तो ए नहीं पता और एक बी नहीं पता. तो पहले हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा प्रॉपर्ली, लाइक 3 3 5 एंड देन वी हैव 5a7. तो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं एंड द रिजल्ट दैट इज देयर इज 8b2, यानी 800 समथिंग समथिंग 2. नाउ इन दिस केस ये 3 से डिविजिबल है, राइट? तो अभी इनका सम कितना आ रहा है? अभी इनका सम 10 आ रहा है, यानी कि या तो जो b है वो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 12 हो जाएगा ना फिर इनका सम, एंड 12 इज अ मल्टीपल. या फिर अगेन फिर हम इसमें 3 3 ऐड करते रहेंगे, या फिर b जो है वो 5 हो सकता है. अगर 5 हो गया तो भी ये हो सकता है, बिकॉज देन इट विल बी 15. एंड consequently we'll keep adding 3, या फिर b 8 भी हो सकता है. now we'll check according to this particular sum. तो 7 + 5 will be 12, तो यानी कि एक तो हो गया कैरी में. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, 5 and 3 are 8, तो यानी कि यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं जा रहा है, यानी कि जो ये b है, जो नंबर आ रहा है, b तो क्या डिजिट है ही, बट जो इनको ऐड करके नंबर आ रहा है वो भी 1 डिजिट का ही नंबर है. तो a इन दिस केस क्या हो सकता है, 4, लाइक 3 + 1 will be 4, राइट? 4 में हम 1 ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू. अब या तो 4 में हम 1 ऐड कर सकते हैं, अगर हम +1 करेंगे यानी कि a की वैल्यू अगर हम +1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 पूरा, तो b 5 आ जाएगा. लेकिन इसमें पूछा है कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है. a की दूसरी वैल्यू हो सकती है 3, हो सकती है 4 5 6 7, नहीं, a की दूसरी वैल्यू 4 हो सकती है, राइट? तो 4 + 4 विल अगेन भी 8, और हमें 8 चाहिए. और क्या क्या वैल्यू हो सकती है, b की वैल्यू नेक्स्ट क्या हो सकती है हमारे पास, नेक्स्ट इट कैन बी 11, और b को 11, b 11 नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बिकॉज अगर b 11 हो गया तो यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा और फिर इसको 9 होना पड़ेगा, जबकि ये तो 8 फिक्स्ड है. तो दिस मीन्स दैट a की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 4 होगी. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4, यानी कि 4 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8. और जब हम इनका सम ट्राई करेंगे तो 8 + 8 + 2, ये तो हो गया 16, देन 18, तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है. तो इस तरीके से हमने पता लगाया. फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा ये. सबसे पहले जैसे b का हमने ट्राई करा कि b क्या क्या हो सकता है, बिकॉज मेन कंडीशन तो यही है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 3. फिर b के अकॉर्डिंग हमने a को चेक करा, b के अकॉर्डिंग भी, और जो ये नंबर है 8 यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी, कि यहाँ पे कुछ कैरी में नहीं आ सकता. So this is the solution for this particular question. Now continuing with the question number 41. The least number which when divided by 6, 9, 12, 15, 18 leaves the remainder, the same remainder 2 in each case. तो इस क्वेश्चन में वही कह रहे हैं कि ऐसा एक लीस्ट नंबर पता लगाओ जिसको जब हम डिवाइड करें इन पर्टिकुलर नंबर से तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है ईच केस में. अब देखो LCM का कंसेप्ट वी ऑल नो, LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि कुछ गिवन नंबर से डिवाइड होता हो. तो ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लीस्ट की बात करते हैं, यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि कुछ गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता हो, यानी कि कम्प्लीटली, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता हो. सो इन दिस केस हमें एलसीएम निकालना है 6 का, 9 का, 12 का, 15 का और 18 का.
तो वन वे कैन बी सिंपली कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो अभी उसी से निकाल लेते हैं। अदरवाइज देयर आर सेवरल अदर वेज ऑल्सो विच आर सिंपलर एंड ईजियर, जिनसे कि हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे, अभी ना इस रिमाइंडर वाले कंसेप्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। फर्स्ट विल सिंपली फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज पर्टिकुलर नंबर्स। अब पहले 2 से करेंगे, सो 3, देन वी हैव 6, देन वी हैव 9, तो यहाँ 15, देन 9, अगेन 2, देन वी हैव 3, 15, 9। तो अब 3 से करेंगे तो 1, 3, 1, 5, 3, देन अगेन 3, 1, फिर लास्ट में 5 रह जाएगा, तो 5 से गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 एंड देन वी हैव 5। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 9 इंटू 5, यानी कि 180 आ गया इनका एलसीएम। तो एलसीएम फॉर दीज नंबर्स इज 180, यानी कि जब हम 180 को डिवाइड करेंगे 6 से, 9 से, 12 से, 15 से या फिर 18 से, मतलब अलग अलग ऑब्वियसली, तो फिर ये डिविजिबल होंगे कम्प्लीटली। जो ये नंबर है डिविजिबल होगा, जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो आएगा 0। So this is the least common multiple of all these 5 numbers. But the condition here is that it leaves remainder 2. तो remainder 2 कब आएगा, जब ये जो नंबर है ये 2 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि अगर ये नंबर 182 आएगा तब रिमाइंडर 2 आएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे 178 ले लें तो फिर रिमाइंडर ज़्यादा आएगा, हर केस में रिमाइंडर अलग अलग हो जाएगा। तो फिर दैट इज़ नॉट द केस, हमें ऐड करना है जब भी हमें ऐसी कंडीशन दे रखी हो। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सपोज 6 से, 9 से, 12 से, किसी भी नंबर से, तो जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 2 आएगा, यानी कि दिस नंबर इज 2 एक्स्ट्रा than the least common multiple of these particular numbers. So this is the solution for this particular question, and the answer for this will be 182. Thank you.